Welcome dear student to this theory session of manufacturing processes. In previous lecture we had seen types and classification of press machine. So on the basis of number of things such as power supply or power use, shape of frame and mechanism used, we can classify the press machine into different categories, and also in them we had seen number of types. So before starting this lecture I want to show you some videos about working of press, and in which you can clearly understand how the press machine works. So this video will illustrate the different working principle of mechanical press. So here you can see how the rotary motion of shaft, ये आपका शाफ्ट है, इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका रोटरी मोशन है. ड्यू टू दिस कैम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये कैम जैसा स्ट्रक्चर है और ये उसका फॉलोअर है. इस मैकेनिज्म को कहते हैं स्कॉच योक मैकेनिज्म. इसेंट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, आपका रोटरी मोशन जो है वो फॉलोअर के ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है, एंड द ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ फॉलोअर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ रैम. दिस पोर्शन इज फ्लाईव्हील. आपके मोटर से जो पावर आता है, दिस इज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो एक बेल्ट ड्राइव और पुली सिस्टम के थ्रू आपके मेन शाफ्ट को दिया जाता है. नाउ दिस पावर इज कन्वर्टेड और स्टोर्ड इन दिस फ्लाईव्हील. इस फ्लाईव्हील में वो स्टोर किया जाता है. ड्यू टू फ्लाईव्हील extra thrust is generated for cutting operation. This is very simple mechanism. These are guide weights. bolster plate, डाई, जो ब्लैकिश कलर का दिख रहा है वो डाई है. उसका हाइट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो by sliding the bolster plate. Now we will try to understand the working of hydraulic press.
थेरोटिकली तो हमने वर्किंग देखा था, अब वीडियो के थ्रू कंपोनेंट में वो वर्किंग कैसे होता है एक्चुअली ये देखने की कोशिश करेंगे। A hydraulic press is a device using a hydraulic cylinder to generate a compressive force. The hydraulic press depends on Pascal's principle. This example will demonstrate how the Pascal's principle may be. तो ये पास्कल लॉ पे वर्क करता है। पास्कल लॉ क्या है ये हमने 12th में पढ़ा है, फिर भी एक बार देखते हैं। Used. When force F1 acts on area S1, a pressure is given by. Pressure acts at every point in the system, which includes surface S2. The attainable force F2 is given by. The basic principle in hydraulic is Pascal's law. The effect of a force acting on a stationary liquid spreads in all directions within the liquid. The forces are in the same ratio as the areas. The forces F1 and F2 vary proportion to the areas of the pistons. The displacements L. So force varies in proportionate to the area. पास्कल लॉ क्या कहता है? फोर्स वेरी होता है एरिया के प्रपोर्शन में इन लिक्विड। एंड ऑल्सो इफ देयर इज वन पॉइंट, अगर ये पॉइंट है तो इस पर एक्ट करने वाला फोर्स इन ऑल डायरेक्शन सेम रहेगा। तो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। सो P1 will be equal to P2 equal to P3 equal to P4. Force will remain same in all direction. Vary proportion to the areas of the pistons. The displacements L1 and L2 of the piston vary inverse proportion to the areas. The check valves 1 and 2 are valves that normally pass fluid through it in only one direction. How does the hydraulic press work? Hydraulic pump is driven by electric motor. Pump sucks fluid from tank and pushes it into the lines of the hydraulic circuit through various hydraulic devices up to the hydraulic cylinder. The direction of movement of the piston in the hydraulic cylinder is controlled via directional valve. Hydraulic cylinder. देखिए यह है आपका पंप, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जो गियर से चलता है। हमने जो जनरली पंप देखे हैं, मोटर जो हमारा पंप रहता है घर में लगा हुआ, वैसा पंप नहीं है। ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इट हैज़ गियर्स और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। यहाँ से आपका ऑयल अंडर प्रेशर इस वॉल में जाता है। इस वॉल का काम क्या है? द यूज ऑफ दिस वॉल इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसे कहते हैं डायरेक्शनल वॉल। सो दिस इज डायरेक्शनल वॉल। ये फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। हमने देखा था अगर सिलेंडर के ऊपर से फ्लूइड प्रेशर होगा तो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा रैम का, अगर नीचे से फ्लूइड फ्लो होगा तो अपवर्ड स्ट्रोक होगा। तो ये डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन करता है फ्लूइड की? ये डायरेक्शन वॉल करता है। At the end of the line represents a resistance to flow. Pressure therefore increases until it. देखिए अभी डायरेक्शन कैसा है? जो डार्क ब्लू लाइन है और जिसे मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ से फ्लूइड डार्क ब्लू लाइन को फॉलो करते चलेंगे हम ऊपर की तरफ। मतलब इस समय रैम का मोशन होगा डाउनवर्ड। Is in a position to overcome this resistance until the piston in the cylinder moves, so that the hydraulic circuit is protected from excess pressures and hence from overloading. The maximum pressure must be limited. This is achieved using a pressure relief valve.
The flow still delivered by the pump flows via pressure relief valve directly back to the tank. The pressure at this moment is maximum. The direction of movement of the piston in the cylinder is controlled via directional valve. The cylinder returns to its starting position. देखिए अब मोशन कैसा है, द फ्लूइड फ्लो पंप टू डायरेक्शनल वाल्व, और अब इस बार फ्लूइड फ्लो कहाँ से जा रहा है, बिलो द पिस्टन, और बिलो द पिस्टन फ्लूइड फ्लो है मतलब रैम विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. Let's see how the hydraulic press works again. Downward motion, upward motion, so this is very simple working principle of hydraulic press. तो हमने मैकेनिकल प्रेस भी देख ली और हाइड्रोलिक प्रेस भी देख ली. मैनुअल प्रेस तो सिंपल है. मैनुअल प्रेस क्या है, वो मैकेनिकल प्रेस ही है बट विदाउट एनी मोटर पावर, हैंड पावर और फुट पावर से वो चलता है. दैट इज मैनुअल प्रेस. नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रेस टर्मिनोलॉजी. प्रेस में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनोलॉजी. तो हम एक हमारा नॉन एग्जाम्पल लेंगे. दिस वन इज अ सिंपल मैकेनिकल प्रेस विथ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. So we can see the main components. First we will see the list. First one is a ram which moves upward and downward. Second one is a ram guide. ये मशीन के फ्रेम का पार्ट है, रैम को वर्टिकल डायरेक्शन में गाइड करता है. पिटमैन मीन्स कनेक्टिंग रॉड, शाफ्ट, फ्लाईव्हील, पंच, डाई. पंच और डाई ये दोनों मिला के इसे हम कहते हैं डाई सेट. तो डाई सेट में पंच और डाई दोनों आते हैं. बोल्स्टर प्लेट, बेस एंड फ्रेम. तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है मैकेनिकल और मैनुअल दोनों प्रेस के. सो बेस इज व्हाट? बेस इज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ प्रेस. एक तरह से हम कह सकते हैं फाउंडेशन है इस मशीन का, फाउंडेशन. तो यहां पर बेस कौन से नंबर से शो किया गया है? नंबर 9. सो दिस वन इज अ बेस. ये दोनों पार्ट क्या है? ये दोनों पार्ट बेस है. मैंने पहले ही कहा था ये व्यू एक फ्रंट व्यू है, एक साइड व्यू है सेम मशीन का. सो दिस वन इज अ बेस. इट इज नथिंग बट अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ प्रेस. सबसे बेसिक मेंबर है. फ्रेम, इट इज अ मेंबर ऑफ प्रेस विच टेक्स वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ रैम. रैम के वर्टिकल फोर्स को बेयर करने वाला मेंबर, और जो मेन बॉडी बनती है प्रेस की उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम. तो यहाँ फ्रेम शो की गई है नंबर 10 से. तो फ्रंट व्यू में तो नहीं दिखाई देती वो क्लियरली, लेकिन यहाँ साइड व्यू में आप देख सकते हो. दिस कंप्लीट पोर्शन जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ,
इज नथिंग बट फ्रेम, ये आपकी फ्रेम हो गई। इसी के अकॉर्डिंग ने हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फ्रेम। बेड, it is the lower part of brace frame that serve as a table to which bolster plate is mounted। तो बेड ये फ्रेम का ही पार्ट है, बट विच पार्ट? इट इज अ लोअर पार्ट। सो दिस पोर्शन, ये फ्रेम का ही पोर्शन है, बट इट इज कॉल्ड एज बेड, और इसी के ऊपर होती है बोल्स्टर प्लेट। बोल्स्टर प्लेट, इट इज शोन बाय नंबर 8। बेस के एग्जैक्टली ऊपर आपका बोल्स्टर प्लेट होगा। इट इज अ थिक प्लेट माउंटेड ऑन बेड विच इज यूज फॉर लोकेटिंग एंड सपोर्टिंग द डाई असेंबली। ये डाई असेंबली को सपोर्ट करता है और लोकेट भी करता है, उसका पोजीशन प्रॉपर हो, इसके लिए भी बोल्स्टर प्लेट यूज किया जाता है। अब ये दूसरे डायग्राम के थ्रू हम बाकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फिफ्थ वन इज अ डाई सेट। इट इज अ असेंबली विच इंक्लूड लोअर एंड अपर शू। लोअर एंड अपर शू मतलब होल्डर, डाई होल्डर और पंच होल्डर। अपर वाले को हम कहते हैं पंच होल्डर, नीचे वाले शू को हम कहते हैं डाई होल्डर। तो डाई असेंबली में क्या आता है? It is assembly which include lower and upper shoe, guide post and bushing. Lower and upper shoe, देखिए पंच होल्डर मतलब अपर साइड होल्डिंग डिवाइस, तो ये पार्ट होता है डाई सेट का पहला पार्ट। डाई होल्डर दैट इज लोअर साइड शू, ये दूसरा पार्ट। गाइड पोस्ट एंड बुशिंग, ये आपके गाइड पोस्ट है मोशन को गाइड करने के लिए, एंड दीज आर गाइड पोस्ट बुशिंग। यहाँ जो वाइट पोर्शन में आपके जार गाइड पोस्ट बुशिंग, तो ये सारे कंपोनेंट के असेंबली को कहते हैं डाई सेट। डाई ब्लॉक, इट इज अ ब्लॉक और प्लेट विच कंटेन डाई कैविटी। जो एक्चुअल कैविटी होती है जहाँ पर पंच असेंबल होता है या पंच जहाँ पर वर्क होता है, उस पोर्शन को कहते हैं डाई ब्लॉक। यहाँ पर देखते हैं दिस पोर्शन, ये जो हैचिंग किया हुआ पोर्शन है इस तरफ और इस तरफ, दिस इज कॉल्ड एज डाई ब्लॉक। डाई होल्डर लोअर शू, ये डाई सेट का पार्ट है। इट इज माउंटेड ऑन बोल्स्टर प्लेट ऑफ प्रेस। द डाई ब्लॉक एंड गाइड पोस्ट आर माउंटेड ऑन डाई होल्डर। ये आपका बेस हो गया, बेस के ऊपर आपका बोल्स्टर प्लेट रहेगा और उसके ऊपर क्या रहेगा? डाई होल्डर और लोअर शू। लोअर शू पर ही आपके गाइड पोस्ट, डाई और बुशिंग, ये सारे पोर्शन माउंट होते हैं। सो इट सपोर्ट्स, क्या क्या सपोर्ट करता है वो? डाई ब्लॉक, गाइड पोस्ट आर माउंटेड ऑन डाई होल्डर। पंच, इट इज अपर कंपोनेंट ऑफ डाई असेंबली विच इज फिक्स टू रैम। यहाँ आप देख सकते हो ये रैम है आपका, बाकी पोर्शन नहीं दिखाया गया है यहाँ पर, बस रैम शो किया गया है। ये हो गया आपका अपर शू पंच होल्डर। पंच होल्डर पे आपका बैकअप प्लेट रहेगा और बैकअप प्लेट में क्या कनेक्टेड होगा? आपका पंच। सो दिस वन इज अ पंच। ये जो पोर्शन है आप नाम देख सकते हो उसका, दिस इज कॉल्ड एज पंच। पंच होल्डर और अपर शू, it is the upper part of die set which contain punch plate
एंड गाइड पोस्ट बुशिंग। ये आपका रैम से जो अटैच होता है वो है पंच प्लेट या पंच होल्डर। पंच होल्डर पे क्या क्या माउंट होगा? आपकी पंच प्लेट माउंट होगी। पंच प्लेट इज यूज टू फिक्स द पंच। और गाइड पोस्ट बुशिंग माउंट होगी। गाइड पोस्ट किस पर माउंट होते हैं? लोअर शू पर। और बुशिंग कहाँ पर माउंट होते हैं? अपर शू पर। पंच प्लेट और पंच रिटेनर, इट फिट्स क्लोजली over the body of the punch and holds it in proper position। पंच प्लेट का काम क्या है? पंच को अपने जगह पर फिक्स करके रखना। स्ट्रिपर्स, द मेन फंक्शन ऑफ द स्ट्रिपर इज टू स्ट्रिप और डिस्कार्ड द वर्क पीस फ्रॉम द पंच और द डाई आफ्टर द एंड ऑफ द कटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन। स्ट्रिपर कहाँ पर है ये पहले देखते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउ द डाई ब्लॉक। और स्ट्रिपर का काम ये है, पंच जब ऑपरेट होता है डाई में तो जो भी वर्कपीस है वो पंच के साथ स्टिक हो जाता है, वो पंच के साथ चिपक जाता है। तो उस वर्कपीस को पंच से रिमूव करने का काम कौन करता है? स्ट्रिपर करता है। उसका काम क्या है? जब ऑपरेशन कंप्लीट हो और वर्कपीस अगर पंच के साथ स्टिक हो गया है तो उसे पंच से रिमूव करना। दैट इज द वर्क ऑफ स्ट्रिपर। नाउ दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें वर्किंग से पहले पता होनी चाहिए। अब वर्किंग का हमने एक वीडियो तो देख लिया है, लेकिन उसे थ्योरेटिकली अब समझने की कोशिश करते हैं। प्रेस वर्किंग। प्रेस वर्किंग क्या है? इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट्स आर मेड फ्रॉम शीट मेटल। शीट मेटल वर्किंग ये तो हमारी नोन टर्म है, हमने पिछले यूनिट में देखा है। फॉर्मिंग प्रोसेस के दो टाइप्स होते हैं, शीट मेटल वर्किंग एंड बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस। तो उसमें से शीट मेटल पे जो वर्क होता है उसे हम प्रेस वर्किंग भी कहते हैं। It is also called as cold stamping and the machine is called as press। इस प्रोसेस को कोल्ड स्टैंपिंग भी कहते हैं बिकॉज हॉट वर्किंग इज जनरली नॉट इम्प्लीमेंटेड इन प्रेस वर्किंग, कोल्ड वर्किंग होता है। Now what are the generalized operation in press working? ऑपरेशंस आर ग्रुप इन टू कैटेगरीज। दो मेजर कैटेगरी बनती है प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस की। पहला तो है कटिंग ऑपरेशंस। द मेटल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पिछले यूनिट में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था जिसमें यंग मॉडुलस था, प्लास्टिक रीजन था, इलास्टिक रीजन था और फेल्यूर पॉइंट था। जब भी आपको कटिंग ऑपरेशन करने हैं तो आपको कहाँ तक मेटल को स्ट्रेस करना है? जब तक उसका फेल्यूर पॉइंट रीच ना हो। फेल्यूर पॉइंट रीच हो गया मतलब वो कट हो गया। तो मेटल को अगर कट करना है इसका मतलब आपको फेल्यूर पॉइंट तक उसे स्ट्रेस करना पड़ेगा। फेल्यूर पॉइंट कहाँ होता है? आफ्टर और बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की। उसके बाद अगर आप फिर से स्ट्रेस करोगे तो वो फेल हो जाएगा। तो वहाँ तक हमें उसे स्ट्रेस करना है। जिस ऑपरेशन में ये किया जाता है वो सारे कौन से ऑपरेशन होते हैं? कटिंग ऑपरेशंस। कटिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स ब्लैंकिंग, पंचिंग, नॉचिंग, परफोरेटिंग, ट्रिमिंग, शेविंग, स्लीटिंग एंड लांसिंग। ये ऑपरेशन हमें देखने ही है एक के बाद एक। अभी बस नाम ध्यान में रखिए कि दो मेजर कैटेगरी होती है। पहला तो कटिंग ऑपरेशन जिसमें इतने सारे ऑपरेशन आते हैं। दूसरी कैटेगरी है फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग मतलब कटिंग नहीं करेंगे, शेप चेंज करेंगे उसका। द मटेरियल इज स्ट्रेस बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ वर्क होगा क्योंकि हमें मटेरियल को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन प्लास्टिक रीजन में ही वर्क होगा, नॉट इन इलास्टिक रीजन। These are shape change operation which include
बेंडिंग, ड्रॉइंग, स्क्वीजिंग। बेंड करना शीट मेटल को, ड्राइंग करना मतलब जो फ्लैट शीट है उसको कप शेप, डिश शेप इसमें कन्वर्ट करना, और स्क्वीजिंग, स्क्वीज करना। स्क्वीजिंग ऑपरेशन कॉइनिंग में काम आता है। जो हमारे कॉइन बनते हैं, 1 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, वो कैसे बनते हैं? शीट मेटल को हम दोनों तरफ से स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने के बाद जो आपको ऊपर से इंप्रेशन दिखता है वो जनरेट होते हैं। दैट इज स्क्वीजिंग ऑपरेशन। इसमें कटिंग नहीं है, सिर्फ हम शेप चेंज कर रहे हैं। So first we will start with cutting operations, and in cutting operation first is blanking. It is a cutting operation of flat metal sheet and the article punched out is known as blank. पहला कटिंग ऑपरेशन है आपका ब्लैंकिंग। ब्लैंक मतलब a piece which is cut out from a larger sheet. अगर ये आपकी पूरी की पूरी शीट है जो डायग्राम में दिख रही है, तो यहाँ से इस पंच के साइज का जो पोर्शन आप कट करोगे, इस पोर्शन को कहते हैं ब्लैंक। और इस तरह के ब्लैंक जनरेट करने का ऑपरेशन है ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अगर ऊपर से देखते हैं तो ये आपकी शीट रहेगी, इसके ऊपर पंच ऑपरेट होगा और इतना पोर्शन रिमूव हो जाएगा, और ये पोर्शन आपको सेपरेटली नीचे मिलेगा। तो ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। दिस ब्लैंक इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। जो कट करके रिमूव किया हुआ पोर्शन है उसे हम ब्लैंक कहते हैं, और इसे जनरेट करना हमारा मेन पर्पज होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में। तो यहाँ देखिए क्या है, एक पंच है, द रिमेनिंग मेटल इज वेस्ट, और जो कट हुआ पोर्शन है ये हमारा यूजफुल पोर्शन है। ब्लैंक फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, कट करने के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, और यही जो कट हुआ पोर्शन है ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ब्लैंक इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड द मेटल लेफ्ट बिहाइंड इज कंसिडर्ड एज वेस्ट। बचा हुआ मेटल हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लैंक। 3D में देख सकते हो आप, ये शीट मेटल था और हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट हमने उसमें से कौन सा रिमूव किया? जो साइज का हमें ब्लैंक चाहिए वो पार्ट। सेकंड ऑपरेशन इज पंचिंग ऑपरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पियर्सिंग। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड पियर्सिंग। पंचिंग और पियर्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली दोनों सेम ऑपरेशन है। अगर आप देखने जाओ तो ब्लैंकिंग और पंचिंग दोनों एग्जैक्टली सिमिलर ऑपरेशन है, बस दोनों में फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, डायग्राम एग्जैक्टली सेम है। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया है। गलत मतलब डायग्राम एग्जैक्टली करेक्ट है, यहाँ जो एरो है वो गलत आ गया है। क्या होना चाहिए? ये वेस्ट पार्ट का जो एरो है वो कटेड पोर्शन को होना चाहिए। ब्लैंकिंग में क्या था? ये ब्लैंकिंग की डायग्राम है। पंचिंग की डायग्राम किस तरह से होनी चाहिए? वेस्ट पार्ट का जो एरो है वो जो कट करके रिमूव किया है उस पोर्शन को होनी चाहिए, और रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा है आपका? जो बचा हुआ पार्ट है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग में आपका जो आपने कट करके रिमूव किया है वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बचा हुआ पार्ट वेस्टेज होता है। पंचिंग में जो कट करके रिमूव किया है वो पार्ट आपका वेस्ट होता है, वो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, और जिस पार्ट पे आपने होल बनाया है वो रिमेनिंग पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो रिक्वायर्ड पार्ट होता है। यही इतना ही डिफरेंस है पंचिंग और ब्लैंकिंग में। इट इज़ अ कटिंग ऑपरेशन
with the help of which holes of various shapes are produced in sheet metal. अलग अलग शेप के होल हम शीट मेटल में प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ होल इम्पॉर्टेंट है. होल के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ब्लैंक इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ ये वेस्ट पार्ट नहीं है, वेस्ट पार्ट इज अ ब्लैंक एंड रिक्वायर्ड पार्ट इज अ रिमेनिंग पोर्शन. इट इज सिमिलर टू ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग से सिमिलर है. ओनली द मेन डिफरेंस इज दैट द होल इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट and the material punch out to form a hole is considered as waste. Exactly reverse of blanking. ऑपरेशन सेम है लेकिन आप प्रोडक्ट दूसरा यूज़ कर रहे हो. पहले ऑपरेशन में जो वेस्ट था वो दूसरे ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है, पहले ऑपरेशन में जो रिक्वायर्ड था वो दूसरे ऑपरेशन में क्या है, वेस्ट है. यस, दिस इज करेक्ट डायग्राम. देखिए डायग्राम तो एग्जैक्टली सेम है लेकिन ये रिक्वायर्ड पार्ट हो गया और ये क्या है, आपका वेस्ट पार्ट है. नॉचिंग, नॉचिंग आपको ये डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा होगा. इट इज सिमिलर टू ब्लैंकिंग ऑपरेशन बट इन दिस फुल सरफेस ऑफ पंच डज नॉट कट द मेटल. देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा होल नहीं है, अपने साइड से एक नॉच बनाया है. मतलब अगर डायमंड शेप का पंच है आपका तो इतना ही पोर्शन यूज़ किया गया है पंच का, ऊपर का पोर्शन हमने यूज़ नहीं किया है, नीचे का पोर्शन यूज़ करके ये नॉच जनरेट हुई है. तो नॉचिंग ऑपरेशन में पंच पूरा का पूरा यूज़ नहीं होगा, उसका कहना भी वही है. इट इज़ सिमिलर टू ब्लैंकिंग ऑपरेशन बट दिस फुल सरफेस ऑफ पंच डज नॉट कट द मेटल. पूरा का पूरा पंच मेटल को कट नहीं करता. अगर पूरा पंच मेटल को कट करेगा तो वो होल हो जाएगा, नॉच नहीं बनेगा. लेकिन अगर पार्ट ऑफ पंच से आप कटिंग करते हो तो वहाँ क्या जनरेट होगा, नॉच जनरेट होगा, होल नहीं जनरेट होगा. तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, ये नॉचेस है, दीज आर नॉट होल्स. तो नॉच जनरेट करने वाला ऑपरेशन मतलब नॉचिंग ऑपरेशन. तो कटिंग ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल ऑपरेशन होते हैं. बस आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है इसके ऊपर उस ऑपरेशन का नाम डिपेंड करता है. इन दिस ऑपरेशन मेटल पीस आर कट फ्रॉम द एजेस ऑफ द शीट. शीट के एज से हम मटेरियल रिमूव करते हैं, उसे कहते हैं नॉचिंग. परफोरेटिंग, इट इज सिमिलर टू पियर्सिंग बट द डिफरेंस इज दैट टू प्रोड्यूस होल्स द पंच इज मे और मे नॉट बी ऑफ राउंड शेप. राउंड शेप का पंच नहीं होगा, है तो पंचिंग या पियर्सिंग ही, लेकिन इन पंचिंग एंड पियर्सिंग मोस्टली द सर्कुलर होल्स आर जनरेटेड. बट परफोरेटिंग में क्या होगा, किसी भी शेप के आप होल जनरेट कर सकते हो. और दूसरा एक डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टीपल होल जनरेट होते हैं कंपेयर टू सिंगल होल इन पंचिंग एंड पियर्सिंग. In this process, multiple holes which are very small and close together are cut in the sheet metal. तो परफोरेटिंग में डिफरेंस क्या है, एक तो सर्कुलर होल हो सकते हैं लेकिन कभी कभी दूसरे से शेप के भी होल होते हैं. और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टीपल होल जनरेट होते हैं, स्मॉलर साइज बट मल्टीपल होल्स, दैट इज कॉल्ड एज परफोरेटिंग. स्लिटिंग, स्लिटिंग ऑपरेशन आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में. एक स्लीट जनरेट की है, एक थीन क्रॉस सेक्शन का कट हमने जनरेट किया है, एक मेटल स्ट्रिप वहाँ से रिमूव की है. इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग एन अनफिनिश्ड कट थ्रू अ लिमिटेड लेंथ ओनली. अगर ये थ्रू आउट द शीट होता तो ये शीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती, लेकिन ये क्या किया है, लिमिटेड लेंथ के लिए हमने कट अप्लाई किया है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लिटिंग प्रोसेस. लांसिंग, देखिए लांसिंग में पंच का शेप कैसा है, जनरली पंच इस तरह से होता है, मतलब ये पोर्शन आपका पूरी तरह से फ्लैट रहेगा. और ये पोर्शन जब ऑपरेट होता है उस समय पैरेलल लाइन में कटिंग होती है. लेकिन लांसिंग में आप पंच देखिए किस तरह से, दिस इज टेपर्ड पंच.
इस तरह का पंच है, तो पंच का ये पोर्शन जो है शीट मेटल के कांटेक्ट में आते ही उसे कट करेगा, लेकिन दूसरा पोर्शन ब्लंट है, वो शार्प एज वाला नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लंट है। तो वो क्या करेगा, बचे हुए स्ट्रिप को कट नहीं करेगा, वो उसे बेंड कर देगा नीचे, और इसी प्रोसेस को कहते हैं लांसिंग। देखिए 3 डायमेंशन में ज़्यादा पता चल रहा होगा आपको। एक तरफ से कट कर दिया और दूसरे तरफ से हमने उसे बेंड कर दिया, दोनों तरफ से कट नहीं किया है। In this operation, there is a cutting of sheet metal through a small length and bending this small cut portion downward. इसे क्या कहते हैं, लांसिंग। एक एज कट कर दी और दूसरे एज को बेंड कर दिया, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, लांसिंग। निबलिंग, निबलिंग ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या किया है, बहुत सारे छोटे 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 होल बनाए हैं, लेकिन ये होल किस तरह से है, ओवरलैपिंग होल्स। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ओवरलैपिंग होल्स बनाना मतलब निबलिंग प्रोसेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक छोटे 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 होल से एक बड़ा कट जनरेट किया गया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक पहला होल बनेगा, उसको जस्ट कनेक्टेड दूसरा होल बनेगा, जिसकी वजह से दोनों होल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। पंचिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल ओवरलैपिंग होल्स, कैसे होल होते हैं, एक तो छोटे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए चलते हैं, अलोंग अ पाथ टू कट आउट अ लार्जर शेप। ये उस कंडीशन में किया जाता है कि आपको जो एक्चुअल शेप कट करना है वो बहुत बड़ा है, उस शेप का आप डाई या पंच नहीं बना सकते हो, तो लेकिन शेप तो कट करना है, तो उस केस में कैसे कट करेंगे उसे, तो उस समय निबलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हो और एक शेप जनरेट करते जाते हो। ये कितना भी बड़ा शेप हो सकता है, आपको धीरे धीरे ही जनरेट करना है उसे, तो उस समय ये यूज़ होता है निबलिंग, जब आपको बहुत बड़ा लार्ज साइज का होल बनाना है और कोई भी डाई या पंच उसके लिए अवेलेबल नहीं है या इकोनॉमिकल भी नहीं है इतना बड़ा डाई और पंच बनाना, उस केस में निबलिंग ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। दिस डू नॉट रिक्वायर्ड टू डिजाइन पंच एंड डाई ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज शेप के पंच और डाई इसमें नहीं बनाने पड़ते हैं, बट इट रिक्वायर सेकेंडरी ऑपरेशन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड फिनिश। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ प्रॉपर फिनिश नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे होल की वजह से ऐसी छोटी छोटी एजेस बन गई है। तो इस ऑपरेशन में आप कॉम्प्लिकेटेड शेप तो जनरेट कर सकते हो, बट उसे फिनिश करना पड़ता है। विदाउट फिनिशिंग आपको उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। शेविंग ऑपरेशन, शेविंग ऑपरेशन तो सबको पता है, जो लड़के हैं उनको तो पता ही है शेविंग कैसे करते हैं। शेविंग का मतलब क्या हुआ, मेटल में देखिए यहाँ आप देख सकते हो बहुत छोटा सा पोर्शन है शीट का जो रफ है, उसे आपको रिमूव करना है, मतलब एकदम छोटे से पोर्शन को रिमूव करना, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं शेविंग ऑपरेशन। और ये एक स्मूथनिंग ऑपरेशन है, जो रफ एजेस है उसको स्मूथ करने के लिए ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। बहुत छोटा सा पोर्शन हम रिमूव करते हैं शेविंग ऑपरेशन में, तो ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन है एक्चुअली। दिस ऑपरेशन इज यूज फॉर कटिंग अनवांटेड एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड वर्कपीस। कुछ वर्कपीस हमने प्रीवियसली उसे फॉर्मिंग ऑपरेशन से जनरेट किया है, लेकिन उसमें फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, कुछ अनवांटेड मटेरियल उसमें आ चुका है, तो उस अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने की प्रोसेस है शेविंग ऑपरेशन। डिंकिंग ऑपरेशन, डिंकिंग ऑपरेशन अगेन एक स्पेशल टाइप का डाई यूज किया जाता है डिंकिंग ऑपरेशन के लिए, जो हॉलो होता है। ये भी होल जनरेट करने का ही ऑपरेशन है। यहाँ आप देख सकते हो 3 डायमेंशन में ये शीट मेटल है जो एक वुडन पोर्शन पे रखा जाता है, वुडन ब्लॉक पे। डिंकिंग ऑपरेशन में जनरली वुडन ब्लॉक पे ही रखते हैं। यहाँ पंच देखिए किस तरह से डाई है एक्चुअली ये, लेकिन ये हॉलो है। इसे आप जब इस मेटल में
प्रेस करोगे तो हॉलो होने की वजह से ये क्या जनरेट करेगा, होल जनरेट करेगा, या यहाँ से एक ब्लैंक कट करके रिमूव करेगा। तो यहाँ बस आपके पास एक सिंगल टूल है, नीचे कोई भी डाई नहीं है, ऊपर से एक सिंगल टूल है। जनरली हमारे पास क्या होता है, नीचे डाई होती है और ऊपर से पंच ऑपरेट होता है, लेकिन इस पोर्शन में एक सिंगल टूल से ये पूरा ऑपरेशन किया जा सकता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पंचिंग फ्रॉम फॉर सॉफ्ट मेटल्स। ये बस सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज होता है, क्योंकि नीचे से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, डाई का सपोर्ट नहीं है इसको, तो हार्ड मेटल्स के लिए नहीं यूज किया जाता। अ हॉलो पंच called as dinking die with tempered and sharpened edges presses the sheet into a block of wood or soft material। सिंगल पंच से काम करते हैं, वुड में उसको प्रेस करते हैं ताकि आपका पोर्शन कट करके रिमूव हो जाए। नाउ दीज आर ऑल कटिंग ऑपरेशंस। नाउ गो फॉर द metal forming operations। In metal forming operation, the sheet metal is stressed below the ultimate strength of metal। फॉर्मिंग के लिए अब हमें मेटल को दो पार्ट में सेपरेट नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है, तो हम बिलो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करेंगे, लेकिन प्लास्टिक लिमिट में। इन these operations no material is removed, hence there is no wastage। कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होता, जो मटेरियल है उसी का हम शेप चेंज करते हैं। मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑपरेशन: बेंडिंग, ड्राइंग। ड्राइंग हमने वायर ड्राइंग जैसा ड्राइंग नहीं, ये शीट मेटल का ड्राइंग है। शीट मेटल को ड्रॉ करके हम कप शेप में या प्लेट शेप में कन्वर्ट करते हैं, फ्लैट शीट मेटल को कप शेप में कन्वर्ट करना। एम्बोसिंग, एम्बोसिंग मतलब एक इम्प्रेशन जनरेट करना। फॉर्मिंग, अलग अलग शेप में कन्वर्ट करना शीट को। कॉइनिंग, कॉइन जनरेट करना, या उस जैसे ऑपरेशन जिसमें सरफेस के ऊपर एक पैटर्न जनरेट किया जाता है कंप्रेस करके। सो वी विल सी इट वन बाय वन। फर्स्ट, बेंडिंग ऑपरेशन। It is a metal forming operation in which the straight metal sheet is transformed into a curve form। उसको बेंड करके हम अलग अलग कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपने अगर स्टील का अलमीरा देखा है तो स्टील के अलमीरा में बहुत जगह पर बेंडिंग ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। शीट को अलग अलग शेप में बेंड करके ही पूरा अलमीरा फॉर्म किया जाता है। In bending operation, the sheet metal is subjected to both tensile and compressive stresses। ये क्यों होता है ये देखेंगे थोड़ी देर बाद, या अभी देखते हैं, थोड़ा एनलार्ज करके देखिए। ये अगर एक शीट मेटल है, मैं इसको एनलार्ज करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। इस मेटल को मैंने बेंड किया, इस तरह से। इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L। अब ऊपर का पोर्शन देखिए, इसकी अगर आप टोटल रेडियस देखते हो या टोटल लेंथ देखते हो, कर्वेचर लेंथ, तो ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि दिस लेंथ इज ग्रेटर देन L। जो ओरिजिनल लेंथ थी शीट मेटल की, बेंड होने के बाद ऊपर की लेंथ जो है वो L से बढ़ चुकी है, इट इज़ ग्रेटर देन L। और नीचे की जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये ऑब्जर्व करने से पता चलती है कि दिस लेंथ इज लेस देन L। L से छोटी है, ये तो देखने में ही पता चलता है। ऐसा क्यों हुआ है? ये बेंडिंग की वजह से हुआ। आपने बेंड किया तो नीचे का जो लेंथ था वो छोटा हो गया, ऊपर का लेंथ बड़ा हो गया। अब जब आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस समय आपकी लेंथ बढ़ती है, मतलब ये जो ऊपर का फाइबर है, फिर से मैं डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। ये आपका बेंड हुआ हुआ पोर्शन है,
ठीक है, नीचे ऊपर की तरफ आपकी लेंथ बड़ी है, इनलार्ज हुई है, मतलब यहाँ कौन सा फोर्स लगा है? टेंसाइल फोर्स, क्योंकि टेंशन में ही हमेशा लेंथ इंक्रीज होती है। और नीचे लेंथ कम हुई है, इसका मतलब यहाँ कौन सा फोर्स लगा है? कॉम्प्रेसिव फोर्स, क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स में ही आपकी लेंथ कम होती है। तो इसलिए बेंडिंग में एट ए टाइम, सेम टाइम पर दोनों फोर्सेस या स्ट्रेसेस मैटर में जनरेट होते हैं। ऊपर के फाइबर पर या ऊपर के जो लेयर है उसमें हमेशा टेंसाइल फोर्स होता है, नीचे के लेयर में हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है। अब अगर ये मैं सेंटर लाइन पकड़ता हूँ तो ये हम मान के चलते हैं कि जो ये सेंटर फाइबर है या सेंटर लेयर है ये न्यूट्रल होती है, यहाँ पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता। सो टेंसाइल इन अपर, कॉम्प्रेसिव इन लोअर। तो यहाँ अगर छोटी छोटी लेयर आप बनाते हो तो न्यूट्रल प्लेन तक सारे ऊपर की लेयर पर आपका टेंसाइल फोर्स होगा, और नीचे की जो भी लेयर है न्यूट्रल लेयर तक आपका कौन सा फोर्स होगा? कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। और सेंटर लेयर जो न्यूट्रल लेयर है उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, ना कॉम्प्रेसिव ना टेंसाइल। तो ये बेसिक फंडामेंटल है बेंडिंग का, इसलिए हम क्या कहते हैं, उस पर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों स्ट्रेस होती है। द बेंडिंग मेथड विच आर कॉमनली यूज आर एज फॉलोज: U bending, V bending, angle bending, curling, edge bending। ये अकॉर्डिंग टू द फाइनल शेप ऑफ द मेटल बेंडिंग के नाम दिए गए हैं। U bending, U bending ऑपरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चैनल बेंडिंग। देखिए कैसे बेंड हुआ है, U शेप में कंपोनेंट को बेंड किया गया है। इस केस में रॉ मटेरियल हमेशा कैसे रहेगा? प्लेट। दिस इज रॉ मटेरियल सारे शीट मेटल ऑपरेशन के लिए, वो एक प्लेट है। और बेंडिंग से आपने इसमें कैसे कन्वर्ट किया? उसको यू शेप में कन्वर्ट किया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज यू बेंडिंग। एक पंच और डाई इसका यूज करके शीट मेटल को यू शेप में बेंड करना। वी बेंडिंग, अब यू की जगह पर वी शेप में बेंड करना। देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ पंच, पंच का जो शेप होगा उस शेप में वो बेंडिंग मिलेगा आपको। तो यहाँ कैसा शेप है? वी जैसा शेप है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वी बेंडिंग। इन वी बेंडिंग ऑपरेशन इन विच वेज शेप पंच इज यूज, द एंगल ऑफ वी मे बी एक्यूट 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस, कुछ भी हो सकता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, but the shape will be V, not U. एंगल बेंडिंग, ना U ना V, किसी अलग एंगल में उसे बेंड करना। कभी कभी मल्टीपल एंगल में भी बेंड करते हैं। सो दिस इज द बेंडिंग ऑफ शीट मेटल एट अ शार्प एंगल। अब तक U और V में कैसे होता था? स्मूथ राउंड एज में हम उसे बेंड करते थे। यहाँ पर देख सकते हो आप, एकदम स्मूथ और राउंड बेंडिंग है, ये एज एकदम स्मूथ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस एज ऑफ बेंडिंग, दिस एज ऑफ बेंडिंग बोथ आर वेरी स्मूथ। तो ये स्मूथ बेंडिंग हो गया। लेकिन जब आपको शार्प बेंडिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल बेंडिंग। यहाँ पर एजेस कैसी है? एकदम शार्प है। देखा, शार्प एजेस में बेंडिंग होना। कर्लिंग, बेंडिंग का नेक्स्ट टाइप है कर्लिंग ऑपरेशन। दिख रहा है आपको शेप, कर्ल किया जाता है, एकदम छोटा सा बेंडिंग करके उसे कर्ल कर देते हैं। ये जनरली जो बड़े बड़े यूटेंसाइल्स होते हैं किचन में उसमें ये बेंडिंग किया जाता है। उसके ऊपर के पोर्शन को हम कर्ल कर देते हैं ताकि वो एज अ हैंडल यूज कर सके।
In this operation, the edge of the sheet metal is curled around. The punch and die both are made to obtain the cavity for curling partially. देखिए पंच और डाई में ही ऐसी कैविटी छोड़ते हैं हम कि जो मेटल है वो उसमें क्या हो जाए, कर्ल हो जाए. इसे कहते हैं कर्ल बेंडिंग. Edge bending. The dies used for edge bending is called as wiping dies. Method involves cantilever loading of sheet metal. A pressure pad is used to hold the base of the workpiece against the die, whereas punch forces the workpiece to yield and bend over the edge of the die. The edge bending operation is limited to bend 90 degree or less. देख रहे हो आप, अब तक हम क्या करते थे, पंच सेंटर में एक्ट होता था शीट मेटल के, लेकिन यहाँ पर कैसे ऑपरेट हुआ है, यहाँ ये मेटल जो है वो कहाँ पर है, एज अ कैंटिलीवर रखा गया और पंच उसके एक साइड में एक्ट होता है. ऊपर से सडन एक्टिंग की वजह से शीट मेटल क्या हुआ, नीचे की तरफ बेंड हो गया. तो ये इस तरह का बेंडिंग है. पंच एक साइड में एक्ट होता है, उसे कहते हैं एज बेंडिंग. सेंटर में एक्ट नहीं हुआ है. देखिए जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल दोनों फोर्स बेंडिंग में अप्लाई होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरफ बेंड हुआ है उस डायरेक्शन में हमेशा कॉम्प्रेशन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन. क्योंकि देखिए यहाँ की जो लेंथ है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है और ओरिजिनल लेंथ जो थी शीट मेटल की उससे भी लार्ज होती है. और ये पॉसिबल है तभी जब टेंसाइल फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो. और लेंथ अगर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब सीधा है कि वहाँ पर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हुआ है. तो बेंडिंग में एक सरफेस पे हमेशा क्या होगा, टेंशन होगा और दूसरे सरफेस पे हमेशा क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा. सेंट्रल एक्सिस ये हमेशा न्यूट्रल होता है, यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हमें देखना है जिसे कहते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट इन बेंडिंग. स्प्रिंग बैक इफेक्ट नाम से क्या पता चलता है, स्प्रिंग. स्प्रिंग सबको पता है, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करते हो और फिर छोड़ देते हो तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है. स्प्रिंग बैक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग जैसा इफेक्ट जब बेंडिंग के बाद कंपोनेंट देने लगे तो उसे कहते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट. मतलब मुझे बेंड करना है 90 डिग्री, लेकिन मैंने पंच और डाई से मटेरियल को रिमूव कर दिया 90 डिग्री बेंड करने के बाद, तो वो फिर से रिगेन हो गया और 90 डिग्री की जगह पे मुझे बेंडिंग मिला 75 डिग्री. मुझे 90 करना था एक्चुअली, लेकिन वो 90 हुआ ही नहीं, वो 75 डिग्री तक ही बेंड हुआ क्योंकि बचा हुआ पोर्शन वो इलास्टिक रिगेन हो गया. एक्चुअली मैंने प्लास्टिक लिमिट में उस पर फोर्स अप्लाई किया था तो वो परमानेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बेंडिंग में ऐसा नहीं होता. इसके पीछे रीज़न है ये न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, ये न्यूट्रल एक्सिस की वजह से क्या होता है, आपका मटेरियल फिर से इलास्टिक रिगेनिंग होती है. कुछ अमाउंट में होती है, 100% नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में इलास्टिक रिगेनिंग होती है. दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग बैक इफेक्ट. और ये क्यों होता है, न्यूट्रल एक्सिस की वजह से. व्हाइल बेंडिंग मेटल इज स्ट्रेस्ड in both compression and tension along two sides of neutral axis beyond elastic limit but below ultimate strength. प्लास्टिक रीजन में वो बेंड हुआ तो एक्चुअली वो फिर से रिगेन नहीं होना चाहिए, लेकिन रिगेन क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ कॉम्प्रेशन है और दूसरे तरफ क्या है, टेंशन है. As the material loaded beyond the elastic limit, plastic deformation takes place. Actual में deformation कौन सा है, प्लास्टिक ही है. When load is removed, the metal retain the shape given by die and punch. ये theoretically होना चाहिए
क्योंकि हमने प्लास्टिक रीजन में उसको डिफॉर्म किया है, तो जो भी शेप उसे दिया गया है उसी शेप में उसने रहना चाहिए, ये थ्योरेटिकली होना चाहिए। बट पर ऐसा नहीं होता। देयर इज सम अमाउंट ऑफ इलास्टिक रिकवरी ऑफ द मेटल रिजल्टिंग इन स्लाइट डिक्रीज इन बेंट एंगल। कुछ अमाउंट में इलास्टिक रिकवरी होती है, जबकि होनी नहीं चाहिए, थ्योरेटिकली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेंडिंग में जनरली होती है। उसके पीछे रीज़न है, एक तरफ कॉम्प्रेशन है, दूसरे तरफ टेंशन है, और ये दोनों एक दूसरे को कुछ अमाउंट में कैंसिल कर सकते हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज स्प्रिंग बैक इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैक इफेक्ट। और ये स्पेसिफिकली बेंडिंग में ही होता है, क्योंकि मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, बेंडिंग जब भी होता है तो जो पोर्शन का डायमीटर कम है उस पोर्शन में हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, और जिसका डायमीटर ज़्यादा है उस पोर्शन में हमेशा कौन सा फोर्स होता है? टेंसाइल फोर्स होता है। दैट्स वाई स्प्रिंग बैक इफेक्ट इज प्रेजेंट इन बेंडिंग। सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हमने बेंडिंग ऑपरेशन देखा, डिटेल में देखा, सारे कटिंग ऑपरेशन देखे, तो अब हम यहीं पे रुकते। हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट to mention your name in the comment box for marking your attendance. Thank you.